Today we are going to study about a very important chapter, heredity and evolution, for class 10th, and it comes under biology section. So first of all, we will study what is the meaning of heredity. So what is heredity? Heredity is the passing on of physical or mental characteristics genetically from one generation to another. So this is heredity, and we can also say the transfer of characters or traits from the parents to their offspring is called heredity. There is one another important term related with heredity that is called variation. Differences जिसको हम बोलते हैं. So the differences between the characters or traits among the individual of the same species are called variation. What is the importance of variation? We will study later. So these are the terms very importantly we have to understand. Now, what is the meaning of inheritance? Inheritance is what? It is a process of passing trait or characters from parent to offspring. It is of two types, inherited and acquired. In biology, offspring has got synonym like baby, progeny. These are the synonym for offspring. Inherited means which we get from our parents or ancestors. Acquired means what? The character that we develop in an individual as a result of environmental influence. It can come ड्यू टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस. ये इन्वायरमेंट की वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर आ सकता है, हम एक्वायर करते हैं अपने लाइफ टाइम में, और इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक कोडेड नहीं होता है डीएनए के थ्रू, और ये इसीलिए पास नहीं होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. एग्जाम्पल, पावर टू लिफ्ट वेट, गेनिंग नॉलेज. तो इनहेरिटेड ट्रेट्स में आप देखेंगे दीज आर द ट्रेट्स दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, लाइक हेयर color, skin color, body type, height and susceptibility. Susceptibility means how our body tackle with certain type of disease is our susceptibility. Our response, immune system का जो हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन डिजीज. तो इसमें हेयर कलर, स्किन कलर ये सब आ जाएंगे. ये सब डिफरेंस है एक्वायर्ड और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स में. अगर डिफरेंस आपको पूछे जाएंगे तो यू हैव टू राइट लाइक दिस. नेक्स्ट इज, ये डिफरेंस का ही मैंने यहाँ पे स्लाइड बनाया है जिसमें मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि दीज आर ट्रेट्स अक्वायर्ड ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम. दीज आर नॉट इनहेरिटेबल एज आई सेड कि इट डू नॉट पास थ्रू आवर डीएनए. अगर डीएनए से पास नहीं होगा तो इनहेरिट नहीं होगा. इट इज नॉट प्रेजेंट इन द जेनेटिक मेकअप एंड चेंज इन द डीएनए विल नॉट रिजल्ट इन एनी चेंज इन सच ट्रेट्स. और इनहेरिटेबल में इसका सारा अपोजिट हो जाता है. ये ट्रेट इनहेरिट होता है from one's ancestors. These are inheritable. These are present in the genetic makeup, and change in DNA will bring about change in such traits. तो ये इसके differences होंगे, and these comes in 3 marks question. Next आप देखें, suppose the eye color of father is black, the eye color of mother is brown. What should be the eye color of baby? These were the questions in front of various biologists. मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब उनको जाके पता चला कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटी फॉर बेबीज आई, वेदर इट विल बी ब्लैक, वेदर इट विल बी ब्राउन और सम अदर कलर. तो ये एक्सपेरिमेंट जो किया है वो आपको बताया जाएगा, कुछ एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए थे. और रूल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का रूल क्या क्या है जो हमें आपको पढ़ाना है, इसी हेरिडिटी और वेरिएशंस जो है इसके अंदर आते हैं. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आर द स्टेटमेंट्स अबाउट द वे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड. किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आए थे. मेंडल conducted experiments with garden pea plants and determined the rules. उन्होंने garden pea plants के कुछ characters लिए, 7 characters, उसके specific character उन्होंने लिए, उसको experiment किया और उसके basis पे उन्होंने rule बनाया. Among the traits that Mendel studied were the color of plants flowers, their location on the plant, the shape and color of pea pods, the shape and color of seeds, and the length of plant stems. These were the 7 characteristics on which he studied and on which he conducted his experiment. That is why Mendel is considered as the father of genetics. He was a monk, biologist, and botanist born in Austria in 1822 and who died in 1884. तो ये आपको जो है समझना है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन? मेंडल. अभी आपको एक क्वेश्चन आपके सामने अभी मैंने लाया था, वेरिएशन जो है वो क्यों आता है. तो वेरिएशन जो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों की वजह से आता है. मोस्टली अगर हम बताएं तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन
offsprings produced by asexual or sexual method of reproduction resemble each other but they also differ to some extent. कुछ हद तक उसमें डिफरेंसेस रहते हैं, एक फैमिली के बच्चे 2 या 3 जो भी हो उनमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है. इन द इट कैन बी द डिफरेंस इन देयर स्किन कलर, इट कैन बी द डिफरेंस इन देयर आई कलर, इट कैन बी डिफरेंस इन देयर हाइट, इट कैन बी डिफरेंस इन देयर बॉडी बिल्डअप, है ना. तो ये इस तरह के डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं. ये कैसे होते हैं? वेरिएशन हो जाता है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, वेरिएशंस होती है और इसीलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो बताया जाता है बेटर है. क्योंकि वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बेटर देन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ ये आपके टेक्स्ट बुक के पहले पेज में दिया हुआ है कि देखें आप सबसे टॉप पे जो है उसके बाद जो जनरेशन चेंज हुई उन सब में कितने सारी वेरिएशंस आ गए. कोई भी सेम टू सेम नहीं है, लेफ्ट राइट सारे चेक करेंगे हम टॉप बॉटम. तो आप देखें ये 4 जो लास्ट जनरेशंस हैं वो सारी की सारी डिफरेंसेस हैं. व्हाई डिड इट हैपन एंड हाउ डिड इट हैपन? इट ऑल हैपन ड्यू टू चेंजेस इन जीन्स और वी मे से वेरिएशंस इन टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल एक ही जनरेशन में ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे जनरेशन के बाद कुछ डिफरेंसेस आ गए एंड दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. नाउ वी हैव टू स्टडी हाउ traits are transferred from parents to offspring. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रेड्स यानी कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं? कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. सेल के न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं और जीन के अंदर डीएनए होता है. तो ये इस तरह से इनहेरिटेंस होता है. सो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट both the father and mother contribute equal amount of genetic material to the child. अगर किसी बच्चे की हाइट की बात करें तो हाइट मदर और फादर दोनों में से एक एक जीन आई होगी, जीन की एलेल आई होगी जिसने पार्टिसिपेट किया होगा गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे. उस वजह से जो है आपका हाइट जो है शॉर्ट है या टॉल है या मीडियम साइज का है. सो फॉर ईच ट्रेट देयर आर 2 फैक्टर्स, वन फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर comes. इसलिए हम बोलते हैं जीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर और वन फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड एलिल और एक फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एलिल बोलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं कि कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास हैं. ह्यूमन बीइंग के केस में 23 पेयर है, 22 सोमैटिक सेल्स है दैट डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड 1 पेयर जो है वो सेक्स सेल्स है, XY इन केस ऑफ मेल एंड XX इन केस ऑफ फीमेल. और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम का नंबर कैसे रहता है कांस्टेंट? ड्यू टू सेल डिवीजन जो कि 2 टाइप की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन एंड दीज कॉजेज कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी. अभी यही क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर भी है कि हाउ क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन कांस्टेंट. कैसे कांस्टेंट रहते हैं? 23 है मेल पेरेंट के पास, 23 है फीमेल पेरेंट के पास, तो बच्चे के पास 46 क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता the chromosome number is kept constant from generation to generation because of process of mitosis and meiosis. While mitosis is equational division which ensures the chromosome number remains same. Equational division है तो वो चाहता है कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा and meiosis is reductional division. तो जब 46 हो गया रिडक्शन से क्या हो गया? फिर से 46 का हाफ कितना? 23. So the chromosome number is reduced to half in the gamete cell so that fertilization restores it back to the original number. ये आपको दोनों सेल डिवीजन की बात करनी है when this question will be asked to you. जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको दोनों के बारे में बात कर लेनी है. ठीक है. अब आप देखें कि इनहेरिटेंस जो है उसमें जो बताया गया कि न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन्स क्रोमोसोम दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन. क्रोमोसोम आर मेड फ्रॉम लॉन्ग कॉइल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए. डीएनए कंटेन्स जीन एंड दे आर यूनिट्स ऑफ हेरिडिटरी and are responsible for inheritance. Different genes are responsible for different trait. आपकी height के लिए अलग जीन है, complexion के लिए अलग है, shape के लिए अलग है. So these all are controlled by different genes. That is why gene is called hereditary unit. अब आप एलील की बात करेंगे. Different forms of the same gene. Most genes have 2 or more variations called allele. For example, the gene for height has 2 allele. हम हाइट के बारे में बात करेंगे क्योंकि आसानी से समझ में आता है. तो हाइट के लिए कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों हो सकता है. अगर टॉल हाइट है उसको हम कैपिटल टी से करते हैं, शॉर्ट हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल टी से करते हैं.
ठीक है। जब दोनों टी एक साथ रहेगा, यानी कि मेल पेरेंट से भी कैपिटल टी आया, फीमेल पेरेंट से भी कैपिटल टी आया, सेम दिख रहा है आपको दोनों जीन, इसे हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब गेमेट्स, तो सेम टाइप के सेल्स आ गए। टी और टी आप सेकंड देख रहे हैं, हेट्रोजाइगस यानी हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, तो एक पेरेंट से कैपिटल और एक पेरेंट से स्मॉल, यानी हेट्रोजाइगस से सेम नहीं है। नीचे आप देखें दोनों स्मॉल है लेकिन है तो सेम, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, होमोजाइगस। तो अगर सेम टाइप का जीन आपको दिख जाए तो होमोजाइगस है, और डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस है। अभी जो कैपिटल लेटर से हम बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट मीन्स व्हाट, इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है इसमें भी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, और जब होमोजाइगस कंडीशन रहेगा तभी भी जो कैरेक्टर आएगी बच्चे के पास वो कौन सी आ जाएगी, टॉल हाइट की ही आ जाएगी। सो एन इंडिविजुअल में इनहेरिट टू आइडेंटिकल और टू डिफरेंट एलील्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। When two different alleles are present, they interact in a specific way. जब heterozygous condition रहेगा तो अलग तरह से एक्सप्रेस होता है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव का हम देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, जीन विच डिसाइड्स द ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर डिफरेंट जीन। दूसरा जीन रहेगा फिर भी जो जीन डिसाइड करता है कि कौन सा कैरेक्टर आएगा वो कौन सा जीन होता है, डोमिनेंट, and this is called dominant and denoted using the capital letter. Recessive में the gene which decides the trait in the presence of other identical gene तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट हो, और वो भी हम इसको एक्सप्रेस करते हैं कैसे, स्मॉल लेटर से। इन अदर वर्ड्स द ट्रेट दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट एंड इज डिनोटेड यूजिंग स्मॉल लेटर। अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है नॉर्मली, कब करेगा, जब दोनों आइडेंटिकल हो और रिसेसिव ट्रेट होंगे तभी एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो होमोजाइगस कंडीशन में ही सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक, रिसेसिव ट्रेट। इसमें आपको याद क्या रखना है, if an individual inherits two tall alleles, the person will be tall, one tall allele, the person will be tall, and two short alleles, the person will be short। ये आपको बता दिया गया है। अब आप देखें एक टर्म आ गया आपके सामने, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीन का मतलब होता है जो आप समझते हैं हेरिडिटरी यूनिट, तो जो किसी भी आपको कैरेक्टर का अगर आपको पता करना पड़े और जीन को देख के अगर आप पता करें कि उसमें जीन का मेकअप कैसा है, कैसे बना हुआ है ये जीन, कैसे ये कैरेक्टर आया, तो उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। अगर बाहर से देखने में अगर आपको पता चले कि ये इंडिविजुअल टॉल है या शॉर्ट है, वो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है। सो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ जीन को हम फिनोटाइप कहते हैं और इंटरनल अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे किसी वायलेट फ्लावर को देख के आप सिर्फ समझ सकते हैं इसका कलर वायलेट है, इसके अंदर कौन सी जीन है, दोनों कैपिटल है या एक कैपिटल एक स्मॉल है, ये आप जब इसका जेनेटिक्स समझेंगे तो पता चलेगा। तो वो जो इंटरनल मेकअप है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं, और जो एक्सटर्नली आपको कलर, हाइट, साइज ये सब दिखती है वो क्या है, फिनोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट जीनोटाइप को यहीं पे थोड़ा और समझा दिया गया है। इफ द एलील आर द सेम द ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस फॉर द ट्रेट, इफ द एलील्स आर डिफरेंट द ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस फॉर द ट्रेट। ठीक, सो व्हाट इज अ फिनोटाइप, इट इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज जीनोटाइप, इट इज इंटरनल मेकअप ऑफ एनी कैरेक्टर्स, इसलिए हम इसको जीनोटाइप कहते हैं। अब टाइपम आपके स्क्रीन पे आया है, ये बोटेनिकल नेम है किसका, पी का, जो हम मटर खाते हैं उसका बोटेनिकल नेम है। इसके ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल साहब ने, तो हम इसे देखेंगे कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने लिया था। अभी आप देखें, मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज पी कैन बी टर्म्ड एज बाइनियल प्लांट, यानी एक साल में ये 2 बार अपनी लाइफ टर्म को कंप्लीट करता है। दिस मीन्स दैट मेंडल कुड गेट इनफ टाइम टू ऑब्जर्व अ लार्ज नंबर ऑफ जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन को उन्होंने पढ़ लिया। Many easily identifiable and contrasting character, मैंने आपको बताया 7 contrasting character उन्होंने देखे थे। तीसरा पॉइंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन था इसका, यानी कि दूसरे प्लांट के मेल या फीमेल जो पार्टनर थे उसकी जरूरत नहीं थी इस प्लांट को। एंड इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ताकि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने में आ जाए। एंड पी प्लांट्स ग्रो वेरी फास्ट, इट मीन्स इट हैज ए वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल। अब 7 ट्रेट्स मेंडल ने जो पढ़ा था उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो 7 ट्रेट आपके सामने में यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप देखें कि कौन कौन सा 7 ट्रेट है। डोमिनेंट कैरेक्टर हाइट में टॉल, डोमिनेंट कैरेक्टर सीड शेप में राउंड, सीड कलर में येलो, सीड कोट कलर में ग्रीन, पॉड के शेप में इन्फ्लेटेड जो कि फुल ऑफ पी है, पॉड कलर ग्रीन एंड फ्लावर पोजीशन एक्सियल मतलब लेटरल साइड में है। और रिसेसिव ट्रेट क्या थी, हाइट की शॉर्ट,
सीड शेप की रिंकल्ड, सीड कलर की ग्रीन, ये सब याद रखेंगे, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाएगा। द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक विच मेंडल हैड टेकन फॉर सीड कलर इज, ऑप्शन हो सकता है ग्रीन, येलो, व्हाइट, पर्पल। तब आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द आंसर। तो इस तरह से आपको ये ऊपर वाले जितने हैं ध्यान रखना है। अभी देखें यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हम बात करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, वैसा क्रॉस जिसमें कि सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के स्टडी की जाती है, उसको क्रॉस किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यहाँ पे आप देखें टी और टी यानी कि हाइट की बात की हुई है मेंडल ने पी प्लांट की हाइट के बारे में स्टडी किया था, तो उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया, इसलिए इस क्रॉस का क्या नाम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो कैपिटल टी जो है वो लिया गया, दोनों पेरेंट्स से अगर कैपिटल टी आ गई तो क्या हो गया, टी और टी। दोनों पेरेंट्स से अगर स्मॉल टी आ गई तो टी और टी दोनों आ गई, ठीक है। अभी इसका पहला क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होती है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे गैमेट सेपरेट करते हैं, एक एक एलील उनकी बाहर आती है। ये दोनों के पास दोनों कैपिटल ही था, तो ऑब्वियसली एक ही कैपिटल टी आएगा, दोनों भी एक आएगा तो क्या होगा, दोनों इसमें कैपिटल है तो कोई सा भी आएगा तो कैपिटल ही होगा। इसमें दोनों स्मॉल है, कोई सा भी आएगा तो स्मॉल ही होगा। तो जब ये दोनों मेटिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो हाइट जो होगी वो बच्चे की टॉल ही होगी, क्योंकि एक भी अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद आप देखें कि जब इसने सेल्फ क्रॉस किया, यानी कि टी और टी, इसने जब अपने टी और टी के साथ ही सेम वाले के साथ क्रॉस किया तो कितने सारे इंडिविजुअल हुए। आप देखो एक कैपिटल ने क्या किया, एक कैपिटल के साथ किया तो टी और टी आ गई। फिर एक इसी कैपिटल ने जब इसे स्मॉल के साथ किया तो एक कैपिटल और एक स्मॉल आ गया, यानी कि टॉल ही आ रहा अभी तक। फिर कैसे चेंज होगा, ये स्मॉल वाले ने जब कैपिटल के साथ किया तभी भी टॉल आ गया, लेकिन जब इस स्मॉल टी ने इस स्मॉल के साथ किया है क्रॉस तो आप देखें कि जो इंडिविजुअल पैदा होगा वो कैसा हो जाएगा, वो ड्वार्फ हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि रेशियो कैसा है, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। बाहर से ये तीनों टॉल एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन जब जेनेटिक्स हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये होमोजाइगस टॉल है और ये हेट्रोजाइगस टॉल है और ये हेट्रोजाइगस टॉल है। इसका मतलब क्या कि जीनोटाइपिक रेशियो कैसा है, 1:2:1। तो जीनोटाइपिक रेशियो कैसा, 1:2:1 आप देख रहे हैं यहाँ पे, और फिनोटाइपिक रेशियो कैसा, 3:1। यही आपको यहाँ पे समझना था। नेक्स्ट हम देखें क्या है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन जो होती है ये तो डेफिनेशन है, डिफरेंसेस बिटवीन द सेल्स, ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर स्पीसीज। ये वेरिएशन क्यों हो सकता है, जीन म्यूटेशन की वजह से हो सकते हैं। जीन म्यूटेशन का मतलब क्या, बहुत सारे चेंजेस जो जीन में होते हैं। चेंजेस कैन बी ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर और अदर ड्यू टू वेरियस जेनेटिक वेरिएशंस। वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कॉजेज इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन करता है एंड इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इनेबल्स फ्यू इंडिविजुअल टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट चेंजेस। इसकी वजह से एडेप्टेशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, ये पता लगता है कि कौन सर्वाइव करेगा, इसीलिए भी वेरिएशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप आपको पढ़ना है। ब्लड ग्रुप में आपको क्या पढ़ना है कि ब्लड ग्रुप जो होती है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप में ये स्पेलिंग जो है वो BLOOD होना चाहिए, ठीक। तो ब्लड में आप देखें कि ब्लड ग्रुप आपको पता था कि कितने होते हैं ब्लड ग्रुप हमारे पास, 4 तरह के। ए, यहाँ देखें आप A, B, AB और O। हमारे हर एक के ब्लड ग्रुप पे एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसे एंटीजन कहते हैं, जो प्रोटीन है। दिस कॉजेज आवर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। इसी की वजह से अगर एंटीजन प्रेजेंट है आपके बॉडी में तो आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नहीं कर पाएगा। तो जिसकी ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीजन भी ए है, जिसके पास ब्लड ग्रुप बी है उसके पास एंटीजन भी बी है, और जिसके पास ब्लड ग्रुप ए भी है उसके पास एंटीजन 2 है, ए और बी दोनों, क्योंकि ये कोडोमिनेंट है, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और जिसके पास ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। तो पहले इसे हम क्या कहते थे, जीरो ब्लड ग्रुप, लेकिन जीरो ब्लड ग्रुप अच्छा नहीं लगता सुनने में, इसलिए इसको ओ ब्लड ग्रुप कह दिए। तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसका एंटीबॉडी क्या है, ए वाले के पास एंटीबॉडी बी के अगेंस्ट बनाता है, बी वाला ए के अगेंस्ट बनाता है, और ए बी किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाता। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल
एक्सेप्टर है, कोई भी दे दो ये एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। और ये O जो है आपका O नेगेटिव यूनिवर्सल क्या है, डोनर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई है। अब क्या है यहाँ पे ब्लड ग्रुप में आपको देखना है कि ब्लड ग्रुप किसी के पास अगर ब्लड टाइप उसका ए है, ब्लड ग्रुप अगर ए है तो किस वजह से है, उसकी जो जीनोटाइप होगी, जीन के अंदर जो पेयर में जीन है उसमें IA और IA, या तो ये हो सकता है या तो एक IA और एक I। ये I किसके लिए है, ये I जो है बेटा वो O के लिए है, यानी O ब्लड ग्रुप जो है रेसेसिव फॉर्म में रहती है। अगर सिंगल रहेगा तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे इस ब्लड ग्रुप के साथ था लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अब यहाँ देखें AB में कोडोमिनेंट है, दोनों A भी रहना पड़ेगा और B भी रहना पड़ेगा। ठीक, अब B में देखते हैं हम। B में देखो, एक तो IB और IB दोनों अगर है होमोजाइगस तब तो B ही होगा। B एक और टाइम पे हो सकता है जब एक है B और दूसरा क्या है, दूसरा I है, यानी कि I रेसेसिव था इसलिए इट कुड नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। और O कब होगा, जब रेसेसिव दोनों आइडेंटिकल होते हैं, होमोजाइगस होते हैं, तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, इसलिए ब्लड टाइप कैसा हो गया, O हो गया। अब आप इसी को थोड़ी थ्योरी में लिखी हुई है, our red blood cells have antigens on their surface and the ability to form these antigens is governed by the gene inherited from the parents। हमारे पास एपीओ सिस्टम है, इसमें 3 एलील होते हैं दैट ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑन ए स्पेसिफिक क्रोमोसोम। IA जो है आपको बताया ये प्रोड्यूस करती है एंटीजन A, IB प्रोड्यूस करती है एंटीजन B और IO कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करती है, इसलिए ये O ब्लड ग्रुप है। ठीक है, और AB जो है वो कोडोमिनेंट है, इसके पास दोनों एंटीजन होता है, A का भी और B का भी, क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं। ठीक, तो IO is recessive and produces neither antigen and so the individual will have blood group O। जो जेनेटिक मेकअप है उसमें कितनी तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, आप देखें IA IB तो AB हो गया, IA तो A हो गया, IO या स्मॉल आई जिसको बोलते हैं वो A हो जाएगी फिर से, क्योंकि स्मॉल आई जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, रेसेसिव है। इसमें B हो जाएगा और ये भी B होगा क्योंकि IO या स्मॉल आई जो भी सेक्स आप उसको डिनोट करें वो रेसेसिव है, और जब IO हो जाएगा वो क्या है, O ब्लड ग्रुप है। जी को हमने फिर से आपको दिखा दिया है कि जब दोनों पेरेंट्स के पास से A और A आया तो बच्चे के पास ब्लड ग्रुप या तो A हो सकता है या O हो सकता है। O कब होगा, जब इनके पास A जो थी वो AI के फॉर्म में थी, दोनों के पास AI के फॉर्म में थी, तो कैसा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। यही A एंड B है तो AB और AB और O हो जाएगा। O कब होगा बताया है आपको, A एंड AB तो A तो होगा ही, B भी होगा और AB भी हो जाएगा। एक पेरेंट्स के पास से A, एक के पास से O तो भी A और O की पॉसिबिलिटी है, एक के पास से B और दूसरे के पास से B तो B तो होगा ही। O कब हो जाएगा, O तब होगा जब B जो थी एक पेरेंट्स के पास वो I के फॉर्म में थी और दूसरे पेरेंट्स के पास भी I के फॉर्म में थी, तब जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा O के फॉर्म। ठीक है, तो ये AB एंड AB भी A हो सकता है, B हो सकता है, A भी हो सकता है। AB और O अगर दोनों पेरेंट्स में से एक के पास AB और एक के पास O तो ब्लड ग्रुप A और B हो सकती है। ठीक, और दोनों पेरेंट्स के पास O है तब तो कोई चॉइस नहीं है, O ही होगा। ठीक जी को हमने यहाँ भी फिर से दिखाया है ताकि आपका ये टर्म बहुत अच्छे से हो जाए क्लियर कि IA और IA है तो क्या हो जाएगा, A ब्लड ग्रुप हो गई। ठीक, एक के पास IA है दूसरे के पास IB है तो ब्लड ग्रुप क्या, AB हो जाएगी, ये भी समझ में आ गई। एक के पास A है और एक के पास स्मॉल I है तो ब्लड ग्रुप A, क्योंकि A है डोमिनेंट। एक के पास B एक के पास A ये तो AB होगा क्योंकि दोनों को डोमिनेंटली एग्जिस्ट करते हैं। एक के पास B है दूसरे के पास भी B है तब तो कोई टेंशन नहीं है, B ब्लड ग्रुप है। एक के पास B और दूसरे के पास I तो एक्सप्रेस करेगा नहीं तो B हो जाएगा। दोनों के पास आई तो अब तो क्या होगा, O ब्लड ग्रुप हो जाएगी। ये अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस हमें समझना है। मोनो हाइब्रिड में सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना था, क्रॉस कराया था, यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ कराना है। आप देखें राउंड एंड येलो, राउंड उसकी शेप थी, येलो उसका कलर था, यानी दो कैरेक्टरिस्टिक को एक बार पढ़ रहे हैं और ये दोनों डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल से हमने क्या कर दिया, इसको एक्सप्रेस कर दिया। रिंकल्ड एंड ग्रीन ये दोनों क्या है, रेसेसिव हैं, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, स्मॉल से कर दिया है। तो जब ये जीन पेयर में रहते हैं तो देखो यहाँ पे दोनों स्मॉल पेयर में है, दोनों स्मॉल यहाँ भी पेयर में है, दोनों कैपिटल पेयर में है, दोनों कैपिटल पेयर में। अभी जब ये
गैमेटोजेनेसिस करेंगे तो एक ही एक आएगा दोनों की तरफ से, तो एक कैपिटल R आ गया और कैपिटल Y, यही इनके पास ऑप्शन ही है, इनके पास तो स्मॉल का ऑप्शन ही नहीं है। तो ये दोनों को जब आप एक साथ रखोगे तो क्या आया RY और RY। इसमें क्या है ऑप्शंस, इसमें ऑप्शन है कि दोनों स्मॉल और दोनों Y और दोनों स्मॉल Y भी। अब आप देखें कि जब एक साथ आप कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे तो आपका कैसा आ गया, यहाँ पर देखो आप कि ऑल राउंड येलो कॉटिलिडन्स, जितने भी बच्चे पैदा हुए नेक्स्ट जनरेशन का जो प्लांट्स आया पी का, वो सारे राउंड येलो पहले जनरेशन में, जैसे हमारा मोनोहाइब्रिड में होता था, क्योंकि आर कैपिटल है और आर स्मॉल भी है, लेकिन एक्सप्रेस कौन करेगा, कैपिटल आर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पे वाई कैपिटल है और वाई स्मॉल है, कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वाई ही करेगा। तो सारे के सारे राउंड और येलो हो गए, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप समझने लग जाए आप कि ये दोनों क्या है, राउंड और येलो है, और राउंड और येलो ये बहुत सारे जब आए एक साथ तो इन दोनों को दो को सेल्फ पॉलिनेट कराया गया, ठीक है, इसको सेल्फ पॉलिनेट कराया गया। तो क्या मिला, आप देखें क्या मिला, ये दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे, दो कैरेक्टर एक साथ आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आया, राउंड येलो जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई, राउंड, और ये क्या है, येलो नहीं है, ग्रीन है, ठीक है। ये कैसी है, ये जो इसमें से बाहर निकला वो क्या था, रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है, रिंकल्ड और येलो, और ये था रिंकल्ड और ग्रीन। ये आप देखें कि एक साथ चार कैरेक्टर इसमें से भी निकले और एक साथ चार कैरेक्टर इसमें से भी निकले। अब 16 को एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल था, तो क्या किया गया, पुनेट स्क्वायर बनाई गई जिसमें 16 कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा जाएगा। तो आप देखें ये जो सारा निकला था, आर वाई कैपिटल और आर वाई स्मॉल, ये सारे को लेफ्ट साइड में यहाँ कर दिया, ठीक है, वर्टिकल कॉलम में, और हॉरिजॉन्टल कॉलम में उसी का सेम, क्योंकि सेल्फिंग कराते हैं तो सेम रखते हैं। अब आप देखें यहाँ पे जब कैपिटल आर और कैपिटल वाई इसके साथ क्रॉस करेंगे तो क्या बनाएगा, दो दो कैपिटल आर, दो दो कैपिटल वाई, ठीक। अभी इसी तरह से ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये जब इसके साथ क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, दो कैपिटल आर लेकिन एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। तीसरा क्या होगा, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई जब स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, देखें अब क्या बनेगा। तो इसी तरह से जो है बनती गई, तो आपको मिलेगा क्या, फिनोटिपिक रेशियो, यानी बाहर से देखने के बाद क्या पता चला, 9 + 3 12 + 3 15 + 1 16, 16 कैरेक्टर्स मिले। कौन कौन से, 9 क्या था, सारे के सारे राउंड येलो थे। देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे राउंड येलो हो गए, ठीक है। तो यही जो है 9:3:3:1 जो है अभी आपको नेक्स्ट में दिखा देती हूँ। आप देखें यहाँ पे यही सेम टू सेम यहाँ पे आया हुआ है, राउंड येलो आया हुआ है। ये क्या है, राउंड रिंकल्ड है। ये क्या है, ये है राउंड येलो। ये क्या है, ये है राउंड और येलो, क्योंकि कैपिटल वाई दिखेगा, जहां भी एक भी दिख गया तो येलो बता दो। ये भी राउंड येलो। ये क्या हो गया, राउंड और ग्रीन। ये राउंड और येलो। ये राउंड ग्रीन। ये राउंड येलो। ये राउंड येलो, और ये रिंकल्ड येलो। ये रिंकल्ड येलो। ये राउंड और येलो। ये राउंड और ग्रीन। ये रिंकल्ड और येलो, और ये रिंकल्ड और ग्रीन। तो रिंकल्ड और ग्रीन बेटा सिर्फ एक है, इसलिए लास्ट में जो आपका 9:3:3:1 आया हुआ है उसमें से ये जो 1 है वो रिंकल्ड और ग्रीन है, और ये 9 है वो कौन सा है, राउंड और येलो। ये बता दिया आपको। ये 3 कौन सा है, 3 जो है वो राउंड और ग्रीन। राउंड और ग्रीन आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई होनी चाहिए, एक, ठीक है, ये 3 ही होगा। एक हो गया, और ये 2 हो गई, और आप एक और खोजें, ये हो गई, बस ये 3 है, ठीक है। तो इस तरह से 3 हो गया और फिर 3 और मिलेगा, तो इसी तरह से आप देखेंगे फिनोटिपिक रेशियो हो गया। जीनोटिपिक रेशियो में क्या हुआ, ये 9 जो आपको दिख रहे थे सारे के सारे क्या डोमिनेंट वाले राउंड येलो थे, नहीं, एक राउंड येलो जो है वो डोमिनेंट वाला है, एक, सिर्फ एक है। ये 2 कैसा है कि इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो तो समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो, राउंड येलो 9 है, पता लग गया है। राउंड ग्रीन मैंने आपको दिखा दिया है। रिंकल्ड येलो कितने हैं, रिंकल्ड
और येलो। रिंकल्ड क्या होगा, जो स्मॉल आर होगी और जो कैपिटल वाई होगा। ये देखो हो गई रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2 और रिंकल्ड येलो 3। ये ही 3 ही है और नहीं मिलेगा कोई भी। रिंकल्ड ग्रीन आपको दिखा चुकी हूँ कि सिर्फ ये रिंकल्ड ग्रीन है। ठीक है, तो ये 9 जो राउंड येलो था उसमें से देखो कितने तरह के हैं। एक हो गया अलग वाला, ये भी इससे अलग है। ठीक है, और तो इसमें जो आपको मिलेगा 1:2 अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो आप देखें 1:2:1, 2:4, 2:1, 2:1, यानी सारे अलग अलग तरह के 16 तरह के कैरेक्टरिस्टिक आपको मिले। ये 16 मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है, आप देखें। राउंड येलो में कितने तरह का है, राउंड जो पूरा कैपिटल है वो एक है, राउंड येलो में जो एक कैपिटल है वो है 2, ऐसे 2 मिल जाएंगे आपको। राउंड और येलो तो हैं लेकिन कैसे वाले हैं राउंड, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, ऐसे भी 2 हैं। और राउंड येलो है, इसमें एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, ऐसे वाले 4 हैं। तो ये आपको जीनोटाइपिक रेशियो याद रखना है कि रिंकल्ड ग्रीन सिर्फ एक है तो आपको एक ही दिखेगा। रिंकल्ड येलो कितने हैं, रिंकल्ड येलो है तो 3 लेकिन अलग अलग तरह के, एक अलग और 2 अलग। देखो आप इस तरह से, आपने देखा था ना 3, ये 3 हो गया। तो ये हो गया 9 जो फिनोटिपिक 9 थी, इसके बारे में बात हो गई। राउंड येलो जो 3 था फिनोटिपिक राउंड ग्रीन, और जो रिंकल्ड येलो थी 3, 9:3:3, और ये रिंकल्ड ग्रीन 1 था। इस सब का जीनोटिपिक रेशियो भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब कि मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो मेंडल का कंट्रीब्यूशन था पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आपने पढ़ा है कि जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो क्या हो जाता है, गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे सारे जो होते हैं गैमेट्स वो सेपरेट करते हैं। सारे गैमेट जब सेपरेट करते हैं बेटा, तो गैमेट के सेपरेट करने का मतलब क्या है कि वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे वो सेपरेट करेंगे, डबल टी होगा उसमें से एक ही टी आएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे सेपरेट होना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो होता है द 2 एलील्स फॉर ईच जीन आर प्लेस्ड इन डिफरेंट गैमेट्स एंड दे गेट सेपरेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि जीन्स डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर, जीन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। अगर करते तो क्या होता, आपने राउंड येलो लिया था तो सारे के सारे राउंड येलो ही हो जाते क्योंकि वो तो डोमिनेंट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि राउंड के साथ रिंकल्ड भी आ गए, है ना। तो इसका मतलब है कि एक दूसरे को वो इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। सो जीन्स डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर। व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, every possible combination of alleles for every gene is equally likely to occur। जितने भी थे राउंड येलो, राउंड रिंकल्ड, राउंड ग्रीन, बहुत सारे की आपको वेरिएशंस आ गए। तो यानी कि इससे क्या हो गया, डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ वेरिएशन, इट विल इंक्रीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता चला। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, व्हेन 2 डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट ओनली वन इज डोमिनेंट अनदर वन इज रिसेसिव। जब 2 डिफरेंट एलील प्रेजेंट होते हैं सिर्फ एक ही डोमिनेंट होता है, दूसरा क्या होता है, रिसेसिव होता है। अब जो लास्ट इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम क्या होता है और जीन कैसे डिसाइड करते हैं। Autosomes, those chromosomes which do not play any role in sex determination. 22 pairs of genes are chromosomes are autosomes. Sex chromosome, those chromosomes which play a role in determining sex of newborn. जैसे आप देख सकते हैं कि मेल पेरेंट्स के पास XY होता है, फीमेल पेरेंट्स के पास XX होती है। तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि एक X जब फादर के दूसरे X के साथ करेगा तो क्या बनेगा, X और X बेबी गर्ल पैदा हो जाएगी। मदर का दूसरा, क्योंकि मदर के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, दोनों क्रोमोसोम X है, तो एक X जब फिर दूसरे टाइम पे एक X जब फीमेल फादर के साथ के Y के साथ अगर रिएक्ट करेगा या क्रॉस करेगा तो कैसा बनाएगा, वो जेंडर बना देगा बॉय। तो इसीलिए 50-50% चांसेस है बॉय और गर्ल जेंडर के। So I think everything is clear in this chapter now. Thank you.